नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2016 के बारे में। दोनों उम्मीदवारों में से कौन बनेगा अमेरिकी राष्ट्रपति, और इससे संबंधित और भी जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। हिलेरी, नेटल चार्ट एक्वेरियस, कुंभ लग्न की मिथुन राशि की हिलेरी अमेरिकन राष्ट्रपति की दावेदारी दूसरी बार चुनाव लड़ने का क्रमांक, प्रतिद्वंदी सिंह और वृश्चिक का, दो शेरों की लड़ाई। लेकिन प्लेनेट संभवतः सब कुछ लियो में ही हो रहा है। जुपिटर हैज लेफ्ट इट्स ऑर्बिट फ्रॉम लियो एंड इट हैज ट्रांजिटेड इन वर्गो। दैट इज 8th house of Hillary Clinton. 8th house, Jupiter was posited in Dasanan, that is master of 10 heads, what you call Ravana. He was embedded with golden bricks, erected Lanka in 16,000 kilometers, that too over a mountain Trikut. See the invincibility of Jupiter placement in the 8th house in Hillary Clinton, and that is having the 7th aspect in his 2nd house. Give him something very precious, very valuable, which touches the highest climax of his state, his nation, his country. And second most important thing, that is his rebel, rather her rebel, that is Donald Trump, is having his chair along with Rahu conjunction, rather the conjunction of Sun and Rahu posted in the 7th bhav of Donald Trump. Donald Trump is eagerly to stay over the throne of United States of America, but the position of Hillary Clinton is very invincible and victorious because the Sun position and the Jupiter's position, the Venus placement in the 12th house, that is Yada Mustari Karkate Akamani Yada Chasmakhora Jami Asmane, means what astrologer will read if the placement of Venus itself is the 12th house, and that is the house of pieces. So automatically it is very clearly foretold by the planets, and all the planets are like the favorable condition created by the planets. 6 planets altogether, most precious planets, Jupiter and Venus. The position of Mars, the position of Mercury of Hillary Clinton is having invincible platform to throw herself to touch the highest climax of sky. So, in today's comparative chart, by seeing the 7th bhav of Donald Trump and the position of Donald Trump, the Karma Kshetra, that is the house of fighting, that is 10th house, is very, very lethal, creating himself and Achilles' heel to ditch himself from being ditched by his own family. Trump likely to annex
likely to annex himself to cowardly nature of statements which can not only circumvent Donald Trump in fighting but can bag him, trail him, drag him to that extent that he was not at all fit to fight against Hillary Clinton again in today's comparative chart of both the fighters, that is Hillary Clinton and Donald Trump. The natal chart reveals this fact today also. In 13th round of canvassing, again Donald Trump is lagging behind by 13% from Hillary Clinton, invincible, the president of United States of America. That is what आज के इस भाव से पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि कुंभ लग्नी मिथुन राशि की ये हिलेरी क्लिंटन और सिंह लग्न तथा वृश्चिक राशि का ये डोनाल्ड ट्रंप, इनके सप्तम भाव के तुलनात्मक अध्ययन, इनके दसम भाव के तुलनात्मक प्रभाव को देखते हुए ये सिद्ध होता हुआ पाया जाता है कि ऋषियों के मत से, ग्रहों के संघात से और ग्रहों के शब्दों के अंदर निहित ऊर्जा से ये कहने की बाध्यता आती है कि आज के 13वें राउंड में भी डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन से 13% पीछे चल रहे हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। हिलेरी विजय श्री की ओर निरंतर अग्रसरित होते हुए ग्रहों के संघात से प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट मिलता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। मैं सुरेश पांडे बोल रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर रात को 11:55। मेरे बेटे की नौकरी कब तक किस क्षेत्र में लगेगी? ब्रज सिंह पूर्व फाल्गुनी, इतना जल्दी नौकरी की? अभी तो बेटा 20 साल का हुआ आपके, इससे ज्यादा तो है नहीं। 22 साल के पहले कोई गवर्नमेंट की नौकरी शुरू नहीं होती। सिपाही चपरासी बात छोड़ दो, क्या गवर्नमेंट जॉब पता आपका बेटा? गवर्नमेंट जॉब, प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द नाइट, यस, गवर्नमेंट जॉब आपका बेटा पाता है, लेकिन 26 वर्ष 11 माह 29 वर्ष 11 माह के मध्य। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं संदीप सौरभ पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1976 है। मैं सुबह 9:02 समस्तीपुर बिहार का जन्म है मेरा। मुझे अपने करियर में स्थायी नौकरी नहीं मिल पा रही है और उपाय बताओ। मिथुन तुला चित्रा चंद्रमा के साथ राहु जब मुही आए ग्रस तक को न हो सहाय हमारो। चंद्रमा और राहु एक साथ हो जाए, जैसे धुआं के बीच में बैठा दो किसी आदमी को तो आंसू रोना नहीं चाहता लेकिन आंसू बहेंगे। इसलिए फिर कहा गया चंद्रमा और राहु की युति में आजीवन ग्रहण। बुआ के यहाँ भागो बुधवार के दिन, बुआ आपकी विधवा होगी, बर्बाद होगी, पुत्रहीन होगी, कोई न कोई संकट जरूर होगा। 12 वर्ष तो आप उनके यहाँ बुधवार को जाएं, पेड़ाया वस्त्र लेकर सलाम करके प्रणाम करके लौट आवें। साल में एक बार ये किया करें, फिर मौज कटेगी। आर्थिक स्थिति का उन्हें निरंतर देखते रहेंगे आप। जी, क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। आदरणीय गुरुदेव सादर प्रणाम। मैं मोहिनी भट्टाचार्य बोल रही हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मेरा जन्म तिथि है 16/5/1978। समय है 8:40 रात्रि। जगदलपुर बस स्टैंड में पैदाइश हुई है सर। मेरी शादी 1997 में श्री प्रताप भट्टाचार्य के साथ हुई थी, जिनके साथ अभी विगत 2 सालों से कोर्ट केस चल रहा है। कब तक हम लोग सब एक साथ रह पाएंगे, इसका ज्योतिषी उपाय बताए। धर्म सिंह पूरा फाल्गुनी बृहस्पति का बाण चलावें आप, नहीं आपका अलग होने की स्थितियां बन नहीं। अंधत्व को प्राप्त बृहस्पति है भला। तत्काल जय का रेखा 10 नेत्रहीनम 10 अंधों को भोजन तत्काल बृहस्पतिवार को कराया जाए। आप देखो इसके कराने के बाद आपका कैसे यूनियन होता है। जी दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं राखी अग्रवाल बोल रही हूँ यूपी झांसी से। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है कि डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1990 है और टाइम है 11:55। पूछना है कि उसकी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। कर्क कन्या चित्रा द्वादश बृहस्पति है। द्वादश बृहस्पति
आप जानते हो द्वादश बृहस्पति में फिर भारत का प्रधानमंत्री भी बीवी बच्चे अपने बेच डाला है, राजा हरिश्चंद्र। इसलिए काशी, अयोध्या, मथुरा जो पृथ्वी से जुड़े हुए नहीं हैं, इनको साल में एक बार स्पर्श कर लें तो इसका श्रापित प्रभाव आप पर नहीं आएगा। और 6 और 7 संग 42 दूना 84, 8 माह 4 दिन, 8 माह 4 दिन आपके अभी भाई को और हैं अवशिष्ट गवर्नमेंट जॉब में पदस्थ होने के लिए या प्राप्त होने के लिए या चयनित होने के लिए। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए देखते हैं। नमस्ते गुरुजी, मैं निशा बैंगलोर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 मई 1988 है और मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी कब होगी। कर्क वृश्चिक अनुराधा, नोट कर लो, 27 नवंबर 2017 और 27 फरवरी 2016 में शादी का प्रमाण नहीं देखा जाता पृष्ठभूमि, भले बना लें आप। एंड यू आर निशा, वेट्स ए। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए देखते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं श्रुति खरेसा राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे बेटे के बारे में है। उसका जन्म डेट है 16 सितंबर 1999। समय है उसका 10:26, स्थान है झालावाड़ राजस्थान। मेरा बेटा आर्यन 11th क्लास में मैथ साइंस लेकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई में विशेष ध्यान नहीं है और ये साइंस सब्जेक्ट उस पे सफलता उसको अर्जित होगी, मार्गदर्शन करें। तुला वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र है। बेटा आपका इंजीनियरिंग लिखवा के लाया है और आप प्रश्न कर रहे हैं कि वो इंटर पास होगा कि नहीं। ये गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है, इंजीनियर होता है, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाता है, इसलिए पर संदेह करना सर्वथा आपके लिए उपयुक्त नहीं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। आदरणीय गुरुजी नमस्कार, मैं खैराती लाल अलवर से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी पुत्र वधू जिनकी जन्म तिथि 11/9/1985 है और उनका जन्म समय रात्रि के 1:35 पर अलवर में हुआ है। गुरुजी मेरा निवेदन ये है कि क्या इनको कहीं सरकारी जॉब मिल सकता है? यदि मिल सकता है तो किस विभाग में, कृपया बताएं, प्लीज कृपा करें। मिथुन कर पुनर्वसु भीष्म पितामह का था, क्या उन्हें कोई सरकारी जॉब मिला? कभी सोचे हो? मिला है। एक पैसा नहीं लेते थे नौकरी का, लेकिन पूरी जिंदगी भारत के तख्त की रक्षा किए और दुर्योधन के साथ रहे और उनकी तरफ से युद्ध भी किए। लेकिन किस भूमिका में? टीचर की भूमिका में, समझाते रहे सबको। ये टीचर होते हैं, प्रशिक्षण क्षेत्र में जाते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम प्रसन्न है, मेरा जन्म स्थान जौनपुर है, मेरी जन्म तिथि 25 सितंबर 1989 है और जन्म समय 9:44 रात्रि में है। गुरुजी मैं MBA पास आउट हूँ और मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ और साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे किस तरह की जॉब मिलेगी या फिर व्यापार क्षेत्र मेरे लिए उचित होगा? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। ब्रश कर श्लेषा यार, नैचाति शेखा साते श्लेषा, कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। यू आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया एट ऑल। यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड और एट द बैंक ऑफ सी इन इंडिया और एट द बैंक ऑफ सी एट फॉरेन लैंड। अपना दरी चदर लपेट लो, वीसा पासपोर्ट बनवा के विदेश चले जाओ, इधर मल्टीनेशनल कंपनी में बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करो। कल आपका चयन होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे, जैसे कि कल है कजरी तीज, तो कजरी तीज के व्रत का महत्व क्या है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 20 अगस्त और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। कल कजली तीज है और कजली तीज के एक दिन पहले से कजली तीज का जागरण शुरू हो जाता है। माता पार्वती जी के लिए यह जागरण प्रारंभ किया जाता है और उसमें गाय की पूजा का विशेष विधान होता है।
और कल के दिन विरह गीत गाने का भी विशेष महत्व होता है। और आज से जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी प्रकार के ताप दुख होते हैं आकस्मिक प्राप्त होते हैं, वह सब दुख दूर हो जाते हैं। दूसरे दिन इसमें गाय की सेवा जरूर करना चाहिए। जैसा कि बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध सिंह से कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, साथ ही साथ आप अपने महीने को कैसे शुभ बना सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। आज बुध का राशि परिवर्तन है। बुध सिंह राशि से हटकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज हम उसकी चर्चा करेंगे बुध आपके लिए क्या लेकर आए हैं और आपको क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है आपकी तरक्की के लिए। विशेष रूप से विद्यार्थियों को उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी और तरक्की आपकी बनी रहेगी। इस माह गणेश जी की आराधना जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्ति पर बुध का राशि परिवर्तन संकेत दे रहा है कि आपके देश विदेश से संबंधित कोई कार्य अटका होगा, वह कार्य बुध की विशेष कृपा से संपन्न हो जाएगा। इस माह आपको झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना होगा और किसी व्यक्ति की आप जमानत भी नहीं दें। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं चतुर्थ भाव से इनका भ्रमण और संकेत है आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाने का। और कहीं कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ किसी व्यक्ति से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। यह माह बुध की कृपा से कुछ न कुछ नया सिखा कर जाएगा जो भविष्य में आपके काम आएगा और आपकी तरक्की अच्छी होगी। कर्क राशि व्यक्तियों को बुध से विशेष रूप से कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बल्कि अच्छे लाभ ही मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें परेशानी बहुत अधिक होती है, लेकिन बुध की कृपा से इस प्रकार की परेशानियां इस माह आपके ऊपर नहीं आएंगी। जो भी काम होगा थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन कार्य संपन्न हो जाएगा। बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन यह संकेत है आपकी तरक्की का, लेकिन कुछ परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं वाणी दोष के कारण। इस माह आपको यदि कहीं कोई पारिवारिक मीटिंग करनी हो, ऑफिशियली कोई मीटिंग करनी हो, तो वहाँ थोड़ा सा वाणी में शब्दों का चयन ठीक रखें, अन्यथा कई बार द्वितीय चलता हुआ बुध शब्दों के माध्यम से गलतफहमियां बना देता है। कन्या राशि में ही बुध का प्रवेश है और यह माह निश्चित रूप से आपके लिए तरक्की वाला है। विद्यार्थी इस माह लाभान्वित होंगे। आपके लिए तो बुध बहुत अच्छा फल दे रहा है कि जो भी याद करेंगे आसानी से याद होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का अच्छा प्रभाव रहेगा, हालांकि यह माह खर्चीला है। विद्यार्थी यदि देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा बुध है। धन के खर्च में आप चाहते हुए भी इस माह नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी कुछ खर्च करना हो उसकी प्लानिंग कर लें कि कम से कम खर्च आपका हो और काम आपका संपन्न हो जाए। इतना ही आपको ध्यान देना है। काम करना पड़ेगा, परिस्थिति चाहे जो भी हो। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के आनंद का समय इस माह बना रहेगा। कुछ रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। बुध की विशेष कृपा रहेगी। भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना भी करें। और यदि कहीं लंबे समय से आपके काम अटके हैं तो इस बुधवार को 5 कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। धनु राशि व्यक्तियों का प्रमोशन का समय है। कुछ नए कार्य को हाथ में लेने का समय है और इस माह उधारी को चुकाने का भी समय है और यह बुध की कृपा से बहुत आसानी से संपन्न होगा। इस माह बुधवार के व्रत कर लिए जाएं और भी अच्छा रहेगा। मकर राशि व्यक्तियों को इस माह आराधना में समय गुजारना चाहिए। भाग्य स्थान से यदि बुध का भ्रमण हो और व्यक्ति साधना कर रहा हो तो उसकी साधनाएं बहुत जल्दी अदृश्य शक्तियों के माध्यम से सफल हो जाती हैं। कुंभ राशि व्यक्तियों को सचेत रहकर कार्य करना होगा। वैसे तो बुध अच्छी स्थिति में है, लेकिन अष्टम चलते हुए बुध स्वास्थ्य की तरफ बहुत अच्छा संकेत नहीं देते हैं। पेट से संबंधित शिकायतें होती हैं, लीवर से संबंधित शिकायतें होती हैं और कई बार दवाइयों का रिएक्शन भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। वहीं कार्यालय के क्षेत्र में तरक्की आपकी पक्की है। मीन राशि व्यक्तियों का बुध पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगा। हालांकि जिन लोगों के परिवार में विवाद चल रहे हैं उन्हें इस माह बुध की शांति करा लेनी चाहिए ताकि आगे का भविष्य आपका सुरक्षित रह सके। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।